Hi everyone, good evening. This is Arjun once again. Welcome to the Coaching Talk Show. And today episode is one of the very important and I can say a guest. She is a teenager, but yes, she is one of the very talented guests with us. So, what I believe personally, this Independence Month we are celebrating with youth. We are celebrating with teenagers so that we can understand the perspective from teenagers and youth point of view also. And that is a very helpful for all of us because a teenager and youth is always contribute a lot in our society, in our nation. So our today guest is one of the only Dia Wagle from Mumbai. She is a teenager, but yes, somewhere she is very interested, and she is always good in psychology. Thank you so much everyone who all are joining. Thank you Niti, thank you Shubham, thank you everyone who all are joining. So I am waiting for my guest. She's here, so I am taking her in camera, and this is the talk show only and only for you, sponsored and powered by Lives Honor. Here we go. Welcome, Dia. Thank you so much to join us. This is Arjun, and welcome to the Coaching Talk Show, powered and sponsored by the Lives Honor. And this is our pleasure. You are here with us as a guest, as a youth, as a teenager. I can say those are contributing in our nation, and that transformation is very important, and especially जब एक टीनेजर अपना कंट्रीब्यूशन करता है एक नेशन में, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम लोग हर इंसान को सुनते हैं, लेकिन टीनेजर्स और यूथ को सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। सो वेलकम टू द कोचिंग टॉक शो, दिया। Good evening, sir. I'm glad to be a part of this show. How are you doing? I'm also glad to be part of it. Yeah, it's perfectly fine. Thank you so much, and I hope today you will also enjoy. I know मुंबई में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, and it's a very rainy thing. That's why network थोड़ा challenging हो सकता है आपके end पे. But yes, our viewers are completely cooperating with us, so that's great. So, Dia, I have few questions that could be helpful for all teenagers group, for all youth as well, and especially हम सभी के लिए. क्योंकि हम सभी लोगों को Yes, कहीं sir. ना कहीं हेल्प मिलती है टीनेजर्स का पर्सपेक्टिव को समझने के लिए. एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स हु ऑल आर joining slowly you can ask, if you would like to ask. Dia is here, I am here to reply on that, and let's understand perspective of a teenager also. It's very important. So Dia, my first question to you, I'm just starting the Yes. coaching talk show. What do you think about the common challenge for in these days? In today's life, we do have a lot of options to explore, but it depends on child to child how they want to involve and engage themselves into it. And main issues we are facing is that few people fail to understand or fail to consider their child's mental health issues, and they find it unnecessary or irrelevant, so the child does not open up easily, so the child starts. Dia's network is breaking, guys. I think it's a little bit interrupted. Yes, Dia, go ahead, please. Okay, so can you hear me? Yeah, we can hear you. Should I repeat myself? No, that's okay. You can continue. Yes, so that's what I said. People don't consider children's mental health issues due they find it irrelevant or unnecessary, so the child hesitates to talk about it, and they lack social needs and emotional engagement. Very well said. And I think personally, being a teenager and being a youth is completely a big challenge. So how you deal with it? आपको भी ऐसी situation face होती है? So how you handle this? I handle by working towards my goal. मैं अपने ambitions की तरफ ढूंढती हूँ. अभी मुझे अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, ambitions है और बहुत कुछ है. So that is very important. I work on my curricular skills and everything. Very good. That means you are focused completely what you are doing. Yes. Yes.
Wonderful. So, Dia, would love to hear about your hobbies. Basically, what you like to do. I love dancing. I love to play football. Hmm. More into business. Hmm. I love it. You love sports also. I heard somewhere. Yes. So basically, our generation doesn't want to focus more over on theoretical things. We want more things which are Hmm. practical based and gives us moral values. We want to learn about management skills, life skills, values, money management, and so on. Oh, great. That means what I can understand and what I am getting, and I'm very sure you viewers are also getting the same thing. In these days, especially teenagers, if I'm talking about, they believe into practical things. They believe into rather than only theoretical things. That's why education policies also they are new policy and it's also based on practical and realistic approach. That will bring a positive change in the future. That's great. That's great. And it's really nice to hear from a teenager, from a youth, they are loving this new education policy 2020. Yes, of course. Super. So, Dia, what do you think, uh, एक टीनेजर जब स्कूल Yes. में जाता है आपको आई वुड लव टू हेयर योर बिट इंट्रोडक्शन बिकॉज व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं I am in 10th grade. 10th ग्रेड सो एक Yes. 10th ग्रेड के बच्चों की अगर हम बात करें कि एक 10th ग्रेड में बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में स्कूल को लेके क्या पर्सपेक्टिव होता है टीचर्स को लेके क्या पर्सपेक्टिव होता है नोट बट द थिंग इज ग्रेजुअली बच्चा पढ़ाई के बारे में बहुत टेंशन लेना चालू करता है तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमारे लाइफ में हमारे लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं हमारी करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं तो ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे हम्म हम्म सो लाइक कि माइंड फ्रेश करने के लिए स्कूल भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एड ऑन करता रहता है कुछ कुछ स्कूल्स एक्टिविटी कराते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आप अभी 10th में ही हो एंड यू सेड योर हॉबी इज योर बिजनेस योर यस हॉबी इज बिजनेस बेसिकली राइट एंड इट्स you're looking forward it so it's a यस great sign in a teenager as well they are looking to something kind of start a new startup or new idea and they would like to generate it for the business so definitely when I studied जब तक हमें 12th तक तो ये भी नहीं पता था कि 12th तक के बच्चे कोई बिजनेस शुरू भी कर सकता है but now you are in 10th and at least you are saying this thing I'm more and more into start a business with your study so that's a really a great start I can say great improvement and new opportunity as well for teenagers यस सर wonderful so they tell me one ऑब्वियसली मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा क्योंकि स्कूल में भी आप लोगों से हाँ क्वेश्चन जी हाँ आंसर जी होते हैं और यहाँ भी क्वेश्चन आंसर हो आई डोंट वांट टू डू दैट तो दिया डू यू थिंक कि पेरेंट्स को भी कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे बच्चा फेडअप हो जाता है कॉमनली हाँ पेरेंट्स को ना बच्चों को सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज उससे बच्चा बहुत मोटिवेटेड रहता है एंड मैंने देखा है कि इन आवर जनरेशन how do we contribute to our society is we educate ourselves through internet we spread awareness and we raise our voice against discrimination of race caste culture gender disabilities and we want to unite together we don't want world with diversity too much of diversity so that is something pathetic things you guys face usually yes wonderful and I'm happy to see that viewers are motivating you Diya Niti ji is saying nice to hear Diya you are so focused wonderful thank you ma'am wonderful thank you thank you Niti for your thank you comment it's
It's really good. Thank you, Manmita ma'am. You also mentioned, Manmita ma'am also mentioned good wishes दिया. Actually, that is the great motivation for a teenager, for a youth. Because जब हम, मुझे ऐसा लगता है जब हम teenager and youth को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूथ और टीनेजर, जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाली जनरेशन, जो नेशन का एक भविष्य है। और हम लोग जिस भी पोजीशन पे हो, जितना भी एक्सपीरियंस ले चुके हो, या जो भी डोमेन में हम लोग एक्सपर्ट हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक यूथ और एक टीनेजर्स को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता है कि हम लोगों ने कितनी अचीवमेंट की। मैटर लोगों के लिए ये करता है आज की डेट में सोसाइटी में वो टीनेजर और यूथ प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि उनके बाहर के जो बच्चे हैं वो भी इस नेशन का एक भविष्य है। वो भी ऑब्वियसली, उनके बच्चे, किसी के भी बच्चे हैं, कोई पेरेंट्स है, वो जब भी ग्रो करेंगे जब वो अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को भी ग्रो कराएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, क्योंकि उनके बच्चों की ग्रोथ भी दूसरे बच्चों के, जो आउटसाइडर बच्चे हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। तो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड एडवाइस टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स हियर बाय दिस वीडियो, यू नो, कि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए, प्रमोट करिए, उनकी ग्रोथ में हेल्प करिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके बच्चों की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। Thank you so much. Poonam is saying, Dia, you are really an inspiration for you. Great comment. Thank you, ma'am. Dia, Thank you. Getting from our viewers. Wonderful. Thank you so much. So, Dia, my next question to you is, do you think, especially, कि most of teenagers slowly, because आप स्कूल जा रहे हैं, आप चीजें देख रहे हैं, और जितना फोकस्ड और जितनी ऑब्जर्वेशन आप कर पाते होगे, उतना शायद एक टीचर भी नहीं कर पाता होगा, क्योंकि आप खुद उस टीनेजर्स यूथ में रहते हैं पूरे दिन, है ना, उसके बीच में रहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि टीनेजर्स आज स्लोली टुवर्ड्स टू ड्रग्स, और आई कैन से समथिंग एल्स, वो एडिक्टेड होता जा रहा है, बिकमिंग एडिक्टेड एंड ऑल, इज इट? That is due to peer. Want to change that. We want to bring a better life. We want something for the betterment of future. That is not right. I disagree to that. So, but आपको ऐसा लगता है कि बच्चे उस तरफ जा रहे हैं, कुछ टीनेजर्स हमारे? हाँ, ऐसे दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक जो अपने एम्बिशंस पे फोकस करता है और एक जो काफी डिस्ट्रैक्टेड है, बिकॉज दे आर लैकिंग इमोशनल नीड्स। वो लोग के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और उन्हें हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। So we support each other by giving each other an emotional hand or give a shoulder to cry. But there are many teenagers who take the wrong path. तो टीनेजर जब रॉन्ग पाथ लेता है, तो टीनेजर्स कभी टीचर से या कभी पेरेंट्स से बात नहीं करता कि किस टाइप की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है? मैंने अभी इसी बारे में बात की थी। हाँ जी, सो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर में नहीं लेते हैं, तो बच्चा ना बहुत हेजिटेट करता है ओपन अप करने के लिए, तो वो इंस्टेड अपने पीयर से बात करता है ताकि वो लोग साथ में रहें एंड ही और शी शुड बी हैप्पी। सो सोशल और इमोशनल और पीयर डिपेंड करता है कि, हाँ, तो पीयर डिपेंड करता है कि अगर पीयर की गाइडेंस या पीयर का डायरेक्शन सही है तो उसे राइट डायरेक्शन मिल जाता है उस बच्चे को, और वहां से ओवरकम हो जाता है, वहां से अपने आप को जाने से रोक लेता है। अगर नहीं है तो वो चला जाता है। इज इट? हाँ। So much, Manvita ma'am, for your comments. That's great. For DIU, it's good. So, thank you. So, because what I feel personally, you know, teenagers are doing a lot effort in these days on education. उनके पास बहुत प्रेशर होता है, पढ़ाई का भी, घर का भी, और सारी चीजों का बहुत सारा प्रेशर होता है, यू नो। उस पे से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती बच्चों के ऊपर डालते हैं कि तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें कंपटीशन बीट करना ही है। एक कंपटीशन का प्रेशर भी होता है पेरेंट्स की साइड से भी। और जैसा आपने बिल्कुल सही बात बोली, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टीनेजर को, हर एक यूथ को, यू नो, पेरेंट्स को स्पेशली उनके मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहला काउंसलर पेरेंट्स होता है बच्चों का। सो आई एम वेरी श्योर यू आर हियर बिकॉज योर पेरेंट्स
is really helping you a lot on your mental health. They work with you, Yes, they are supporting you. That's why you are speaking on this absolutely topic right. here today. Yes. So definitely you should feel proud on your parents as well. Yes, of course I am. Wonderful. Thank you so much, Shubham. Glad to hear so much, Dia, that you are too focused to your goal. Thank That's you. really wonderful. Great. And I'm also I'm also glad to hear that at least, Dia, you are really focused. There is a one comment coming from Anvita ma'am: we should make the teens comfortable enough to open us as a parent. Absolutely, completely agreed. जिस तरीके से पेरेंट्स के साथ आई कैन से कि कई टीनेजर पेरेंट्स के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं ड्यू टू बिहेवियर. पेरेंट्स एक ऐसे स्पेस बना के रखते हैं बच्चों के साथ कि बच्चा पहले ही घबराया हुआ है, इतना वो शेयर क्या करेगा, Yes, sir. डरा हुआ So है. yes, so every child develops its value based on environment, on the environment they are growing. So वो जैसे ही बढ़ते हैं उन पे बहुत अफेक्ट कैसा होता है उनका एनवायरनमेंट और सब. Environment is matter really a lot. Yes. Yes, sir. And तो दिया 10th स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली बोर्ड होगा आपका, राइट? हाँ जी है. इस बोर्ड एग्जाम तो हाँ. प्रेशर भी काफी होगा आपके ऊपर. इस प्रेशर को कैसे है हैंडल करते हैं प्रेशर. आप, कुछ यहाँ टीनेजर्स को बताना चाहेंगे? हाँ, सो बेसिकली एंजाइटी एग्जाम के टाइम पे जरूर होती है. तो जब आपका ध्यान है ना पढ़ाई के थ्योरीज पे नहीं, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा होना चाहिए. उस पे फोकस करो, अपने आप को काम डाउन करो, मेडिटेशन ट्राई करो, दैट रियली हेल्प्स. और along with studies focus on what you like, ताकि आपका माइंड फोकस्ड दोनों जगह पे रहे और आपको एक डिस्ट्रैक्शन भी मिले. फुल प्रेशर स्टडीज पे डालने से बहुत बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं. So you would like to say here to our viewers, to our audience कि like पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे को, एक टीनेजर को और एक्टिविटी जो माइंडफुलनेस से रिलेटेड है या फिर जो उसकी हीलिंग में हेल्प करती है उसमें भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, सो दैट Yes, वो उसकी sir. परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकती है, उसकी स्टडी परफॉर्मेंस पे. अफेक्ट करता है. And physical education plays an important role in this. Along with mental health, you need to keep yourself physically fit. So which physical sports you are involving to yourself? I play football, of course. I do yoga. I try to meditate. I wish I could go outside and take a run, but I could not. That's it. So Yes. that's a really great thing, एक स्पोर्ट्स का जो बच्चा एक स्पोर्ट्स में इनिशिएट करता है, जैसे कि आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट यू आर इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड योगा एज वेल, मेडिटेशन एज वेल. एंड इस एज में आप अपने अपने आप को अगर अपनी हीलिंग के प्रोसेस को इन चीजों में बांटा हुआ है विद योर स्टडी, इज रियली आउटस्टैंडिंग. यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब. Thank you, sir. Thank you so much. And by the coaching talk show, guys, we always try to help teenagers, we always try to help people, especially youth, क्योंकि अभी आज की डेट में एक जो सिचुएशन है कोविड-19 का, जो चैलेंजिंग टाइम है, इसमें ये यूथ और ये टीनेजर हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, मेरी आपकी सबकी. और हम लोगों के पास चैलेंजेस हमारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन टीनेजर और यूथ के लिए भी हम सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं सोचेंगे तो इनके लिए कौन सोचेगा, और अगर इनके लिए कोई नहीं सोचेगा तो हमारा नेशन का डेवलपमेंट कौन सोचेगा, क्योंकि यही तो. और अगर हम इनके बारे में सोचेंगे, कल को हम लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने ही सब चीज मतलब अपने जोन में रहेंगे, तो इज समवेयर हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज यूथ और टीनेजर की सपोर्ट करिए, हेल्प करिए. बड़ी होप के साथ ये लोग हमें देखते हैं. ये जितने एक्सपीरियंस लोग होते हैं या जो बड़े होते हैं, इवन इनके पेरेंट्स हुए टीनेजर्स के, या टीचर्स भी हुए, आउटसाइडर भी हुए, एक्सपर्ट्स भी हुए, बड़ी होप के साथ सुनते हैं. उस होप को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी लोगों की है. आज ये टीनेजर, आज दिया अगर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म
है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है. शी इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. सो बट आई वुड सजेस्ट हम सभी लोगों को, सभी टीनेजर्स को सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है. सो दिया, आपको क्या लगता है कि अगर एक आउटसाइडर, अगर मैं पेरेंट्स को हटा दूं और अगर मैं टीचर्स को भी हटा दूं, उनके अलावा अगर एक आउटसाइडर एक टीनेजर को या एक यूथ को सपोर्ट करता है या मॉरल सपोर्ट करता है, तो कैसा इफेक्ट होता है उसके माइंड में? सो बेसिकली हम कैसा लोगों को लगता ना है? बहुत अच्छा लगता है. हम लोग को लगता है कि हमारे साथ कोई है. हमें डर नहीं लगता, हमारा डर जाता है और हम बहुत खुश रहते हैं. हमें सोशलाइज करने का बहुत टाइम मिलता है. वी मेक मोर फ्रेंड्स, वी आर एंगेज्ड इन अ बेटर लाइफ. See, guys, listen. This message is very carefully. Carefully listen it, क्योंकि दिया यहाँ पे ये कह रही है कि हम लोगों का डर जाता है. अगर कोई बाहर का इंसान पेरेंट्स और टीचर को छोड़ के हमारे को सपोर्ट करता है, हमारी हेल्प करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट्स और टीचर्स को छोड़ के अगर कोई भी इंसान टीनेजर की हेल्प करता है, मॉरल सपोर्ट करता है, इन लोगों का डर जाता है, इन लोगों के अंदर से एग्जाइटी खत्म होती है और ये लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं. तो हम इतना तो करा ही सकते हैं मिलके. तो जब आज एक टीनेजर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे इस चीज को शेयर कर रहा है, इसका मतलब 70 to 80% टीनेजर यही सोचते होंगे, मुझे उम्मीद है. और एक टीनेजर के साथ कॉन्फिडेंस, जब वो बड़ा होता है और जब वो यूथ होता है, जब वो जॉब ज्वाइन करने जा रहा होता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का कमी होती है, कहता है मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. बहुत बार आपने यही है कि व्हेन वी थिंक लाइक कि कॉन्फिडेंस लैक है, बचपन से ही ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है. इस चीज को फिक्स किया जा सकता है, टीनेजर एज में ही फिक्स किया जा सकता है, व्हेन external people will start helping to teenagers and youth. What do you say, Diya? Of course. Yes. Very good. Thank you to everyone who all are joining and listening this show. And apart from that, अगर कोई दिया को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, she is here to reply. And definitely we are also here to help people. So Diya, my next question to you is, मैं आपसे बैक टू बैक नहीं पूछूंगा बिकॉज मुझे पता है ज्यादा प्रेशर मैं भी नहीं देना चाहता टीनेजर्स को. तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो. हमारा टीनेजर्स का ना बहुत बड़ा वॉइस है एंड वी कैन रेज वॉइस अगेंस्ट नॉन एक्सेप्टेबल फैक्ट्स इन द सोसाइटी. बहुत जगह बहुत लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सोसाइटी में. वी नीड टू हेल्प देम आउट. हमारी जनरेशन एक चेंज लाएगी. तो आई वॉन्ट टू से stop discriminating against the race, the caste, the nationality, gender और disabilities. हम सब एक है. हम जब यूनाइट तब होंगे जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे में ट्रस्ट बिल्ड करेंगे. क्या थॉट है आपकी? रियली अप्रिशिएबल, ऑसम. क्योंकि ये you, थॉट अगर आपके पेरेंट्स ने आपके चाइल्डहुड से अब तक टीनेजर तक अगर इस टाइप की थॉट नर्चर की है, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर योर पेरेंट्स आल्सो एंड दे आल्सो डिजर्व फॉर अ ग्रेट एप्रिसिएशन. रियली इट्स गुड, साउंड्स गुड. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. I'm very sure your mom and dad will feel a great proud kind of in future because जिस तरीके से आप फोकस्ड है, जिस तरीके से आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स, आपकी वैल्यू, बिकॉज हम सभी लोग मॉरल और वैल्यू पे चलते हैं और एक टीनेजर की वैल्यूज क्लियर होना, उनके मॉरल्स क्लियर होना इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग. तो इसके लिए कितने लोग कितनी सारी ट्रेनिंग्स इनरोल कराते हैं एंड विदाउट ट्रेनिंग्स यू आर डेवलप्ड लाइक दैट लेवल. इट्स अकमेंडेबल. वेरी नाइस. गुड. सो दिया, ये तो बात रही कि टीनेजर के लिए क्या मैसेज है. आकाश का एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू टीच about politics and religion to teenagers? Yes, so I said our education system is basically more
ऑन थ्योरी बेस्ड। हमें प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है, हमें मॉरल चीजें सीखनी है, और हमें लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, ताकि हमें फ्यूचर में जाके चैलेंजेस फेस करने हो। अगर मैंने कंट्री चेंज किया और मुझे कुछ आइडिया नहीं है वहाँ पे, अगर ये एजुकेशन सिस्टम ने चेंज लाया तो आई कैन हेल्प माई सेल्फ, आई कैन बी very comfortable over there, I can understand everything, it will help me throughout. Wonderful. So, Akash, your question is, what do you think is the best way to teach about politics and religion to teenagers? So, I think Diya already mentioned things, but I would also add one thing here. Like, बेस्ट वे यही हो सकता है कि जैसे दिया ने बोला कि थियोरेटिकल से हटके थोड़ा सा टीनेजर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बहुत जरूरत है। इनको स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल चीजों से इंट्रोड्यूस कराने की बहुत जरूरत है। स्कूल के साथ साथ ही पेरेंट्स को भी इनको उस चीज में सपोर्ट करने की जरूरत है, वेयर दे कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पार्ट की। जैसा दिया ने बोला कि रिलीजन कुछ नहीं, ऑल अबाउट यूनिटी है। किसी भी धर्म से इंसान, कहीं भी कास्ट से इंसान, कहीं से भी कुछ भी आता है, एटलीस्ट हम लोग ह्यूमन है। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, वी आर ए फर्स्ट ह्यूमन, आफ्टर देन अनदर रिलीजन एंड ऑल वट एवर एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, जब बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि ह्यूमैनिटी का पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन सब में ज्यादा अपने आप को मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का क्या होता है, ये तो आना और जाना लगा रहता है, ठीक है। एंड रिलीजन में मैं यही बोलूंगा, इंसान को बदलता नहीं है, दो आंख, एक नाक, दो कान, हम सभी लोगों के हैं, राइट। तो इस चीज को लेकिन समझना टीनेजर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टीनेजर क्या होता है ना, पजल हो जाता है। जो अराउंड में चीजें चल रही है ना, मतलब न्यूज में भी लोग भी उसी बारे में बात कर रहे हैं, टीचर भी क्लास में बैठ के टीनेजर के सामने आपस के डिस्कशन भी वही कर रहे हैं, तो उससे टीनेजर डिस्ट्रैक्टेड है कि भैया मैं फोकस अपने करियर पे करूं, और या टीचर ये जो बात कर रहा है, या जो पेरेंट्स ये जो बात कर रहा है, या जो बाहर ये जो बात चल रही है, मैं उस पर फोकस करूं। व्हाट डू यू से दिया अबाउट इट? ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, बट हम लोगों के जनरेशन में मैंने ये चीज काफी देखी है कि बहुत सारी जगह जब डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, हम आगे आके लोगों को बोलते हैं कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, तब देखते हैं क्या होता है। आप अपना सोच थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में डाल के देखो, मे बी हम लोग, ह्यूमैनिटी बढ़ जाएगी, हम सब यूनाइटेड रहेंगे। Good thought. So Poonam is saying, wow, at this age, thinking about all these issues shows the wonderfulness of you. Great. Thank you, ma'am. Superb. So anyone else would like to anything or would love to connect anything? Akash, आपका आंसर क्लियर है, और would you like to ask something else on this, or is it what you were asking? I would love to hear from your side. There is a one comment for you, Diya. Well spoken, Diya. Your thoughts are really great. Thank you so much. Good. Thank you everyone who all are watching this show and the coaching talk show. हमारा इस टॉक शो का पर्पस ही यही है, अभी पूरे अगस्त कम से कम, कि टीनेजर और यूथ जो लोग कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं और डिफरेंट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आके वो अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करें, अपने थॉट्स को शेयर करें, और अपने साथ वो दूसरों को भी हेल्प करें। मोनाली ठाकुर, प्राउड ऑफ यू दिया। Thank you so much. Wonderful. Thank you, Monali. So yeah, absolutely. This is the very important thing you are discussing here, Diya, and I'm very sure ये talk show में जो भी pointers आप as a teenagers raise कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों के लिए लर्निंग होगी, क्योंकि हमारी लर्निंग हर एज ग्रुप से होती है। इवन आई आल्सो लर्न फ्रॉम एवरी एज ग्रुप, राइट? So that's why I also personally believe to explore every age group perspective, views, thoughts, so that every day let's learn something and let's see that thing from that perspective, not only formatted perspective. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है हमने अगर टीनेजर को सोचा है टीनेजर ऐसा है तो सारे टीनेजर ऐसा ही होंगे, राइट? या यूथ अगर ऐसा है तो सारे यूथ ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें डिटेल में जाने की जरूरत है। और एक यूथ और टीनेजर के बारे में बात करने से पहले मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, उनके बारे में स्टडी करें, लाइक उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में, कि वो सोचते क्या हैं, वो करते क्या हैं।
तो मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको ऐसा Yes, लगता sir. है कि कई बार जो लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, या मैं स्कूल की बात करूं या Yes. मैं बाहर भी बात करूं, या आपके जो कोचेस भी होंगे, आपके स्पोर्ट्स कोच या जो भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो लोग टीनेजर को अच्छे से समझते हैं या सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस के बेस पे उन्हें मोल्ड करने की कोशिश करते हैं? So it depends on person to person. So one thing I've realized is every generation is like a bridge. उसमें अपने gaps होते हैं और दूसरी generation उन्हें समझ नहीं पाती कभी कभार. But अगर आपने उनसे बात करने की try की, उन्हें support किया, तो maybe आज आप समझ पाओगे उनका perspective क्या है इस चीज से लेके, and misunderstandings clear हो जाएगी. तो ऐसा लगता है आपको? ओके, ग्रेट. सो मैं आपसे बस इस पे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा थॉट जो आप रखना चाहते हो टीनेजर्स और यूथ के लिए. मेरा अगला सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन टीनेजर से नहीं है इस बार, डिफरेंट पीपल, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द वन कॉमन मैसेज or common change that you would like to bring in teenagers community? एक ऐसा चेंज जो टीनेजर कम्युनिटी में आप लाना चाहते हो, जो आपको लगता है इट शुड बी. ये क्वेश्चंस पे अभी रिप्लाई करते हैं दिया. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑन दिस क्वेश्चन फर्स्ट. Network. I am Yeah, facing now some it's clear. technical Tell issues. me, I Dia. can't hear Yeah, you. yeah, tell me. No problem, no problem. Yes. No So, problem. can you repeat yourself again? Can you hear me now? Because I'm facing some technical issues. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कि एक टीनेजर, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट. एक टीनेजर, आपको क्या लगता है टीनेजर की कम्युनिटी में कौन सा ऐसा कॉमन चेंज है जो इमीडिएट आना चाहिए? Immediate. So basically बहुत सारे टीनेजर्स कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है. वही बोल रही हूँ कि जब वो लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं तो दे जस्ट चूज अ डिफरेंट पाथ, और उन्हें वापस लाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो वन थिंग आई disagree to is when there are peer pressures and peer influences. So teenagers make bad decisions as well. There are pros along with cons. ग्रेट, साउंड्स गुड. आकाश जी का एक क्वेश्चन है यहाँ दिया. आई हैव ए क्वेश्चन दैट एज ए टीनेजर हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. एज ए टीनेजर आकाश जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, क्या गलत है और क्या सही है? Okay, so on social media we do have sites, we have a websites that help us find out. तो sites में ऐसा है कि ये right होता है, आपको इसके against होना चाहिए. It gives us moral values. So we educate ourselves through social media and spread awareness about that. I think the question is something different. दिया आकाश का क्वेश्चन है कि एक टीनेजर कैसे डिफरेंशिएट करता है कि क्या सही है और क्या गलत है उसकी लाइफ में डिसीजन लेते वक्त. वो लोग अपने वैल्यूज वैसे ही अडाप्ट करते हैं जैसे वो इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं. बट यूजुअली हमारे मैं जिन्हें जानती हूँ, बहुत टीनेजर्स अपने आप को सोशल मीडिया है कि आज के टाइम में ये गलत होता है, ये राइट होता है, जो हमें बहुत हेल्पफुल रहता है. There is a quite a little technical challenge are coming due to heavy rain in Mumbai, I think so. So that's why I'm sorry, viewers, for this technical challenge from Dia side. So I think Dia, your answer is a bit satisfactory answer, and Akash will tell if is it good for him or what. If anyone else would like to ask, they can ask. And Dia, absolutely, these all answers, this all comments are very helpful for everyone who all are watching this show, who all are enjoying your talk, and it's really commendable. She got the point. Akash said it. Thank Wonderful. you, sir. Thank you.
Thank you so much, Dia. And yes, before closing my this talk show, I would like to ask one thing here. You know, what do you think about as a teenager about parents, your parents? Well, अभी बहुत सारे जो टीनेजर्स ओपन अप नहीं करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. सो एवरी टीनेजर हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बहुत के घर पे इश्यूज होते हैं, कोई अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाता ड्यू टू जनरेशन गैप्स. बट इन माय पर्सनल लाइफ, I love to talk to my parents about things. I am really happy to talk to them and share whatever I have in Great. mind. I'm very sure your parents is also very open up with you, so that you are also comfortable with them. Yes, they are completely open-minded and ready to hear what I have to say. Great. Cool. I think it's a very good talk show, Dia, and I'm sure people really enjoyed and loved it. Apart from that, if anyone has any question, concern, doubt, query, feedback, suggestion, they can put comment here. The coaching talk show is always try to bring a best guest, especially the complete independence month. We are celebrating with youth and teenagers as well. We would love to hear youth and teenager only on this independence complete month, so that we can also understand उनकी सोच, उनका विश्वास, उनका वो एहसास जो हमारी समाज में हम लोगों से सभी के साथ जुड़ा हुआ है, उनको समझते हैं. मैं इस शो के थ्रू समझ रहा हूँ. आप सभी लोग, आपके आसपास जितने टीनेजर एंड यूथ हैं, उनको समझिए और कोशिश करिए उन लोगों को मॉरल सपोर्ट दीजिए. उन्हें हमारी जरूरत है, तो उनकी जरूरत को समझिए. हर जरूरत फाइनेंशियल नहीं होती, हर जरूरत सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, कुछ जरूरत दिमाग और इमोशंस से जुड़ी होती है. तो बच्चों को समझिए, टीनेजर को समझिए, यूथ को समझिए. मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉट एज ए कोच, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं ये बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं भी जब टीनेजर था, मैं भी जब यूथ था, मुझे भी सपोर्ट मिला, इसलिए आज मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ. मुझे उम्मीद है हम सभी लोग जब टीनेजर्स को अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं. तो देयर इज फ्यू कमेंट्स. भारती का एक क्वेश्चन है, हाउ कैन पेरेंट्स बिल्ड कनेक्ट विद द टीनेजर किड्स बेटर? So, well, parents और बच्चों का bond is really very important and essential. So, go and talk to your kids. वो लोगों को जाके आराम से baby steps लो, आराम से बात करो, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे नहीं आना है, एंड इंस्टेड ऑफ आजकल के लाइफ में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेरेंट्स बहुत एंगेज्ड रहते हैं. तो अपना वो सब करियर का काम थोड़ा सा साइड में रख के उनके साथ टाइम स्पेंड करो, टेक्नोलॉजी को अवॉइड करो, उनके साथ जाके बात करो, थोड़ा उन्हें सपोर्ट और एक ट्रस्ट बहुत अच्छा लगता है. तो मतलब भारती, शी इज ट्राइंग टू से हियर कि पेरेंट्स को जाके बात करनी चाहिए टीनेजर से, और डायरेक्ट पॉइंट पे बात मत करो. टीनेजर्स को पहले उनकी साइकोलॉजी को समझो, उन्हें अंडरस्टैंड करो, और स्लोली 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 वो ओपन अप होंगे. एकदम से नहीं पूछना है पॉइंट. Yes, of course. Good. Shubham, it was really an amazing show. Thank you, Shubham. And thank you, Bharti. I hope you got your reply. So Dia, just would like to hear from your side before closing. How's your experience of today talk show? I really loved it, and thank you for having me, and I am happy to know people's perspective towards our generation, because it's not easy for everyone to understand. Great. I think it's a great thought, and thank you so much for your this kind words, and I really appreciate for it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Cool. So thank you everyone who all joined this the coaching talk show, and I hope it was one of the best good talk show, and I personally enjoyed. And thank you, Dia, for your amazing comment on Dia. So Dia is commenting to Dia. So here's commenting Dia, and her name is also Dia. Great. Thank you, ma'am.
So thank you so much everyone who all joined, and I hope this show was one of the very beneficial for you and for especially teenagers. Before closing, I would request you to help youth and contribute to grow this nation. क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आज नहीं मदद करी तो कल ये भविष्य में कुछ भी स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे टीनेजर्स हैं। इन टीनेजर्स को समझिए, इनके साथ एंजॉय करिए, और सबसे बड़ी बात, इनको रखिए, एज गैप को उतना बना के रखिए जितनी जरूरत है, उतना नहीं जहां पे इनका फियर शुरू हो जाए। ग्रेट, थैंक यू so much, Zia. Wish you all the best. I wish for your great success and career as well. And मुझे उम्मीद है whatever you have planned for your vision, your mission, achieve होगा, because you are clear on that. Thank you so much and have Thank a you so wonderful much. evening and stay safe. Have a great weekend as well. Same thing. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you.